Arsenal 4, Leicester City 2, and this was the best way to come back home for this season, go back to the Emirates for the first time this season and secure such a comprehensive win. Arsenal इससे of course बड़ी खुश होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ because ये हमारे नए एक्विजिशंस का, नए साइनिंग्स का फर्स्ट होम गेम था. एंड yeah man, Gabriel Jesus, Zinchenko, Saliba, everyone played really well, and 4-2 is a very good score, especially after that 2-0 win away from home at Crystal Palace. And जिस तरह का मोमेंटम है, मुझे तो लगता है हम आगे वाली गेम्स भी जीतेंगे. So let's talk about the goals. The first goal was by Gabriel Jesus, and that was a beautiful curling shot into the top corner. मतलब बिल्कुल Alexis जैसे याद दिला दी उस शॉट ने. And that was great यार. मतलब what a goal. I mean, मेरे को तो expected ही नहीं था कि कोई स्ट्राइकर वहाँ से शूट करेगा, because Arsenal players, you know, we try to work those intricate angles, and हमें लगता है कि मतलब एक और पास, एक और क्यूट पास, गोल मतलब 100% हो जाए. So when Jesus took that shot, I was like, wow. And of course, like I said, it reminded me of Alexis. The second goal by him was वो तो सेट पीस से आया था, वार्डी का फ्लिक ऑन हुआ था और उसके बाद बैक पोस्ट पे उसको फ्लिक ऑन कर लिया था. थर्ड गोल was by Xhaka. I think this was after Leicester scored, वो सलीबा को ओन गोल के बाद. And of course, before I go on to Xhaka's goal, जब सलीबा ने ओन गोल कंसीड किया था, of course वो मिस कम्युनिकेशन हो गया था रैम्सडेल एंड सलीबा के बीच. तो द क्राउड, जिस तरीके से क्राउड उनके पीछे रहा, सपोर्ट किया, दैट वाज अमेजिंग. एंड वी वॉन्ट लाइक, हमारी जो लीड हाफ हो गई थी, did not remain like that for too long. उसके बाद जाका ने बहुत ब्यूटिफुली एक गोल किया. I mean, Gabriel Jesus could have had more goals. एक और Gabriel Jesus का ही गोल हो सकता था, बट वार्ड ने आई थिंक डिफ्लेक्ट करके बिल्कुल जाका के पाथ पे डाल दिया. जाका ऑफ कोर्स फिनिश्ड इट. एक और कमेंडेबल बात है कि जाका इज़ प्लेइंग सो एडवांस्ड, सो इट वाज सो गुड to see this new way we are lining up, the way we are attacking. सब इतना fluid चल रहा है. Xhaka एडवांस है, Zinchenko इन्वर्ट कर रहा है, बेन वाइट इन्वर्ट कर रहा है. अब हम अपने राइट साइड पे उतने डिपेंडेंट नहीं हैं. मतलब कैन यू इमेजिन लास्ट सीजन तक जब साका एंड ओडेगार्ड की क्वाइट गेम्स होती थी, देन इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट मेंट दैट वी लॉस्ट और वी डिड नॉट स्कोर या ड्रॉ हो गया. मतलब परफॉर्मेंस बहुत फ्लैट था, बिकॉज टीम्स कुड जस्ट ट्रैप आर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बिल्कुल हमारा यूजलेस सही था. एंड इट्स सो नाइस टू सी Gabriel Martinelli, Xhaka, Gabriel Jesus combining on the left side, Zinchenko being there. It's just मतलब मज़े ही आ गए. एक क्या ही बोलूँ मैं. खैर, so like I said, Xhaka's goal, द थर्ड वन, 3-1 की लीड हो गई थी. उसके बाद लेस्टर ने फिर से स्कोर किया था मैडिसन के थ्रू, विच आई थॉट रैम्सडेल कुड हैव डन अ लिटिल बेटर, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है. उसके बाद वी गॉट आवर लीड अगेन, 2 गोल्स की लीड व्हेन मार्टिनेली स्कोर्ड विद हिज लेफ्ट फुट. अगेन Gabriel Jesus का असिस्ट था, सो ही हैज़ 2 goals and 2 assists in that game yesterday. जितने भी FPL वालों ने Gabriel Jesus को खिलाया, congratulations. So if we talk about the game in general, matlab, this was such a huge improvement for our performance from last season, because the team is playing so fluidly. Matlab, passes, everyone seems so good on the ball. सबको पता चल रहा है कि पोजिशनल प्ले कैसे करना है, कौन कहाँ पे है एंड कैसे रिसीव करना है. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़े से नर्वी मोमेंट्स थे. Xhaka ने बॉल 1-2 बार गिव अवे कर दी थी. Fofana came pretty close, but man, that front line, I mean, that Martinelli Gabriel Jesus connection, that front three connection with Saka as well at times, it's a beautiful thing to watch, because Martinelli had Fofana on toast. मतलब
I remember मैंने पढ़ा था कि Leicester is asking Chelsea for around 80 to 85, 90 million euros for Wesley Fofana. After that performance against Gabriel Martinelli, मतलब मेरे को तो लग रहा है 10-15 मिलियन यूरो तो ऐसे उसकी प्राइस कट चुकी है. But that was jokes aside. Martinelli is really good. मतलब it's scarily good how good our team is and how fluid we are, and ये attack कितने बढ़िया हैं compared to last season जो बहुत one dimensional लग रहा था. And सब interchangeable है. कभी Gabriel Jesus would be on the right, he would be on the left. Martinelli would, after the substitutions, Martinelli played on the right side. कभी Gabriel Martinelli central खेल रहे थे. Gabriel Xhaka कह रहा हूँ, Granit Xhaka started it at LCM I guess, या फिर as a double pivot, and वो कभी कभी left back पे होते थे. He would be the furthest forward, मतलब Ramsey level के late runs बना रहे थे, third man runs बना रहे थे. So it's insane जितनी fluidity थी हमारे game में, and it was insane the way we were. अब हम चलते हैं देखने कि ये जो 4-2 the score line, let's reflect on it for a second. Okay, of course बहुत अच्छी विन थी एंड वी आर ऑल हैप्पी. मतलब कल तो मैं बहुत ही खुश था. मैं तो सोच रहा था इमीडिएटली वीडियो बना दूं, बट मुझे लगा कि ना एक दिन वेट कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन गिव अ मेजर्ड रिस्पॉन्स टू व्हाट हैज हैपेंड. देखो 4-2 is a great scoreline. It's great for our forwards. It's great for our wingers, central mids and defenders as well, because our defenders defended really well. मैंने उनको मेंशन नहीं किया, but I'll tell you why. See, Leicester had a few good opportunities. Most हमने काट दी थी. But sometimes like that Madison chance जिसमें score किया, the miscommunication between Saliba and Ramsdale, those things can change the game for us as well. ठीक है? चलो ये तो backline हो गया. Let's move to the forwards, because the forwards वाला part in this is more important. Gabriel Jesus scored 2 goals. He got 2 assists, but he could have had maybe like 5-6 more, and we need him to finish those chances as well. चाहे वो 4 गोल हो, 5 गोल हो, 6 गोल हो, हैट्रिक, whatever. मतलब कोई नहीं कहेगा कि Gabriel Jesus did not deserve his hat-trick, but a lot of times I felt कि उसकी finishing at par नहीं. Now of course 2 goals 2 assists के बाद लगता है कि यार क्या nitpicking कर रहा है, but our third goal was because Danny Ward ने ball spill कर दी थी. Now I can't imagine an Ederson or an Alisson, sometimes even De Gea. I mean, चलो उसका तो yesterday's game तो लगता नहीं है, but चलो Mendy, all these players, Lloris, most of the good keepers will not make spills like this. Danny Ward, let's not be confused about it, is a replacement to Kasper Schmeichel, and he's a downgrade on Kasper Schmeichel, I'd say, at least based on yesterday's game. Good keepers will not let go of chances like this. They will not make spillages like this ताकि Xhaka rebound कर ले. And neither like the fourth goal. Fourth goal भी जो था long range, Gabriel Martinelli का weak foot, driven low in the corner. जो कीपर्स की अच्छी पोजिशनिंग होगी, जिनके डिफेंडर्स बेटर होंगे, ये सब नहीं चलेगा उनके अगेंस्ट. सो जस्ट लाइक द पैलेस गेम, फर्स्ट हाफ वाज एक्सीलेंट. मतलब Leicester could not touch us, just like Crystal Palace could not touch us in the first 20 minutes or whatever. But in the second half, we actually drew. Now this might seem, again, like I said, nitpicking after a 4-2 win. क्या चाहिए, but एक ना सेंस ऑफ यूफोरिया नहीं होना चाहिए कि भाई अब तो हम लीग जीतने वाले हैं. लास्ट सीजन हमने 3 गेम्स में 0 गोल्स, -9 गोल डिफरेंस था, 0 पॉइंट्स पे थे. इस सीजन में हमने +4 गोल डिफरेंस पे हैं, 6 points 2 from 2, second in the table right behind City. So I wouldn't say we were lucky, but इतनी ज़्यादा चांसेस टू कन्वर्ट एंड टेक लीड्स हमें दूसरी टीम्स के अगेंस्ट नहीं मिलेंगे. दिस वाज अ लिवरपूल. अगर हमने 2-0 भी लीड ले ली होती, दे वुड हैव फ्लॉट बैक टू 2-2, एंड फिर वो 2-2 के बाद जो लिवरपूल की तरफ या फिर सिटी की तरफ 3-2 हो सकता है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड आई वुड जस्ट से दैट द गेम वाज ग्रेट, बट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट
वी कन्वर्ट द चांसेस वी गेट. अभी लास्ट गेम में काफ़ी लक हमारे साथ था, एंड ऑफ कोर्स ऐसे सीजन में लक बहुत टाइम अब साथ होता है टीम्स के. कभी वार डिसीजन नहीं मिलता, कभी किसी को पेनल्टी नहीं मिलती, कोई 1 इंच से या 1 सेंटीमीटर से ऑफसाइड हो जाते तो नहीं मिलता. तो ऑफ कोर्स सीजन में ऐसे लक्स आते हैं यार, बट हमें अपने चांसेस को बेटर फिनिश करना पड़ेगा. हमारी राइट साइड को फॉर एग्जांपल विल आल्सो नीड टू स्टेप अप एंड be as cohesive as our left side. Saka, Odegaard, no one will say they had bad games. Maybe सबको लग रहा है कि उनका स्टैंडर्ड जो गेम्स होती थी वो इस सीजन अभी तक नहीं हुई है, बिकॉज लास्ट सीजन तक we only dependent on our right side. But maybe this is a good thing, and it's at the end of it it's 3 points. Like I said, मैं तो बहुत खुश हूँ यार. मतलब I'd rather have 4-2 in our favor with a lucky couple of goals than 4-2 in their favor with a lucky couple of goals. So Arsenal winning 4-2 has good amount of significance future के लिए भी, because our next game is against I think Bournemouth. उसके बाद फुलम, फिर विला, फिर यूनाइटेड. आई थिंक यही ऑर्डर है. एंड चलो ठीक है, विला बनाना स्किन हो सकता है. आई थिंक फुलम एंड बर्नमथ के अगेंस्ट हम जीत सकते हैं. मैंने बर्नमथ का गेम ही देखा अगेंस्ट सिटी, बिकॉज तो आर्सेनल का गेम था. एंड फुलम ने लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छा खेला, बट आई थिंक कल 0-0 ड्रॉ था. सो फुलम का कुछ कह नहीं सकते. बट आई थिंक फुलम, विला, बर्नमथ आर गुड गेम्स टू विन. विला भी मेरे को काफ़ी कन्विंसिंग नहीं लगी थी. फाइनली आते यूनाइटेड. नाउ यूनाइटेड का सीन कल को देख के तो लगता है बहुत शैम्बॉलिक है, बट सब हट जाता है यार. मतलब आर्सेनल यूनाइटेड जब होता है तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. खैर दैट्स तो लाइक नेक्स्ट मंथ और समथिंग, एंड नेक्स्ट मंथ तक तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है. सो 4-2 दो यार. मतलब आई वाज एक्सटैटिक ड्यूरिंग द गेम. मजे ही आ गए थे. एंड वी नीड टू कीप दिस मोमेंटम गोइंग. हमें और स्कोर करना होगा, हमें और क्लिनिकल होना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी. गैब्रियल जेसस डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच. विलियम सलीबा, चलो ओन गोल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेरी गुड प्लेयर. जिनचेंको, व्हाट अ सोल्जर मैन, व्हाट अ हार्ड वर्क. मजे ही आ गए. व्हाट अ वॉरियर लाइक पीपल से. उसके बाद या अदर नोटेबल मेंशन ऑफ कोर्स मार्टिनेली. फफाना को तो मतलब उसने टोस्ट कर दिया. रनिंग ऑल ओवर द पिच, रिलेंटलेस प्रेसिंग, स्कोरिंग, बिल्डिंग अप प्ले. ओडेगार्ड का भी क्या मतलब अमेजिंग पासेस. सब टिक टैक हो रहा था. like clockwork, everyone was contributing in one way or the other. Saka I think needs to improve a little, but ठीक है हो गया. Partey great turns, but वो पास उसके बाद उसने कचरा कर देता था. Ben White solid, no issues. मेरे को लगा उसका नॉक हो गया था, but I think he'll be fine. And Gabriel center back पे he was also good, solid, अच्छा था. रैमस्डेल ने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था एंड उसने कमेंट्स डिसेबल कर दिए थे. आई थिंक यार अब एज आर्सेनल फैंस ना हमें तो रियलाइज होना चाहिए कि गुड सपोर्ट की क्या मतलब वैल्यू होती है. रैमस्डेल चलो ठीक है, थोड़ा लोगों को लगे शेकी है, बट यार अभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, राइट? यू कांट जस्ट ओनली गेट बिहाइंड न्यू प्लेयर्स एंड बी लाइक हाँ यार मतलब इस बंदे को सपोर्ट करो, ये तो नया बंदा है. वो तो होता ही है, बट यार रैमस्डेल ऑल्सो डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस गया. तो उसके बाद तो फिर मैट टर्नर है, लेनो जैसे बैकअप नहीं है अब हमारे पास. सो सपोर्ट रैमस्डेल. ये सब गलतियां होती हैं. ही इज अ फाइन प्लेयर, इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. मतलब दैट गोल किक फ्रॉम रैमस्डेल जो गैब्रियल जेसस ने टर्न करके जॉनी एवंस को पीछे छोड़ दिया था, एंड ही शुड हैव स्कोर्ड दैट बाय द वे. Ramsdale is capable of all that stuff, and shot stopping improve होती रहेगी. The guy is what under 23, 22-23 साल का Ramsdale. यार ये सब तो ग्रो करने के होते हैं. गोलकीपर्स का तो पीक एंड प्राइम 30s में आता है. सोचो हमें कितना अच्छा प्लेयर 23 years old का मिला है गोल में, तो इम्प्रूव भी करेगा. सो लाइक yesterday was insane for Arsenal. उसके बाद मैंने ब्रेंटफोर्ड मैन यूनाइटेड का गेम देखा. क्या ही बोले उसके बारे में.
उसके लिए तो अलग ही वीडियो बनती है किसी यूनाइटेड फैन के साथ, समझने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। मतलब गेम तो सबने ही देखा है, गोल्स भी सबने ही देखे हैं, रिएक्शंस भी देख ही लिए होंगे, रेजेस भी देख लिए होंगे, बट क्या है अंडरलाइंग यूनाइटेड का प्रॉब्लम? मे बी आई गेट सम यूट्यूबर, मे बी आई गेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुज अ यूनाइटेड सपोर्टर, देखते क्या सीन है। बट या 4-2 to the Arsenal. Next game against Bournemouth, I still think we will win. Great game by everyone. I really love what Mikel Arteta is doing. And yes, see you in the next video. Come on, you Gunners.